Hello everyone, this is Katie here. In this video, we are going to learn about EVS topic, housing and clothing. This is the first video that is part 1 of the chapter. Watch this video attentively and nicely. The second video will be released soon. Throughout history, people have fabricated shelters that fit their surroundings. With a universal set of criteria in mind, including access to tools, availability of materials, and type of climate, individuals from all over the world constantly reinterpret, reimagine, and redefine the concept of home. ये वर्षों से होता आया है, सभ्यता के शुरू से, कि मानव किसी प्रकार के घर में रहते आए हैं, चाहे वो पहले ज़माना का गुफा हो या पेड़ पौधे या कोई सुरंग। हर युग में मनुष्य का बहुत गहरा संबंध है घरों से। To many of us, a home is a four-walled fixture on a permanent foundation. हम सभी के लिए घर कुछ और नहीं, बस एक चार दीवारी का एक मकान होता है। But to others, मगर दूसरों के लिए, it is a snowy sanctuary, a hidden cave, or even a floating boat. मगर औरों के लिए ये एक बहुत ही सुंदर आकृति वाला या एक छुपा हुआ गुफा या एक चलता हुआ बोट भी हो सकता है। Here we explore these different types of houses in order to understand how and why such a wide range of shelters exist across the globe. तो आइए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि कितने प्रकार के घर होते हैं और मानव को किस किस प्रकार के घर की आवश्यकता होती है उनके ज़रूरत के अनुसार। This is the type of houses. In this picture, you can see the hut, detached room, semi-detached, castle यानी महल, flat apartment, लंबे लंबे मकान अपार्टमेंट जो मॉडर्न ज़माना का घर है आजकल, बंगलो जो एक सिंगल फैमिली बनाती है अपने लिए। तो ये अलग अलग प्रकार का घर है, इस पिक्चर में देख सकते हैं। We can see in this picture different types of home according to the requirement of ह्यूमन नेचर। इंसानी ज़रूरत के लिए अलग अलग तरह का घर अलग अलग स्थानों पे पाया जाता है और लोग घर बनाते हैं मौसम और अपने बजट के अनुसार। पीपल मेक हाउसेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्लाइमेट एंड देयर बजट। अंडर द रिक्वायरमेंट दे मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस। जिसकी जैसी आवश्यकता वो उसी प्रकार के घर बनाते हैं। Now types of houses. Types of houses. People live in different kinds of houses. Many people keep on moving from one place to another. Some people live in temporary or some in permanent house. लोग अलग अलग तरह के घरों में रहते हैं। कुछ एक ही प्रकार के घर में रहते हैं एक ही स्थान पे, और कुछ बंजारों की तरह एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते रहते हैं। Some people live in पक्का हाउसेस और some in कच्चा हाउसेस। कुछ पक्के मकान में रहते हैं और कुछ कच्चे मकानों पे। The houses we live in protect us from heat, rain, wind, dust and animals. हम लोग अपने घर में इसलिए रहते हैं ताकि हमें सुरक्षा मिल सके सूर्य की किरणों से, बारिश से, हवा से, धूल से और जानवरों से। We build different kinds of houses in different regions. In different region, we build different kind of houses in different region, depending on the climate of that region. हम लोग अलग अलग प्रकार के घर अलग अलग स्थानों पर बनाते हैं अपनी ज़रूरत के आवश्यकता के अनुसार। In cold region, houses in cold region, अब देखते हैं घर जो ठंडे जगह में बनाए जाते हैं। ठंडे स्थानों पे कैसा घर होता है हम लोग देखेंगे।
Let's see what type of houses we make in cold places. First of all, igloos. Igloo. Some regions such as Arctic region and polar region are completely covered with snow and extremely cold. People in that region build house by using block of snow, generally in the form of dome shape. Dome shape helps to keep the place warm from inside. Igloo is also referred as snow house. People living in the Arctic regions of Greenland, Canada and Alaska are known as Inuit. इग्लू भी एक तरह का ऐसे बर्फ़ का घर है जो पोलर रीजन पे पाया जाता है, जो कम्प्लीटली पूरी तरीके से बर्फ़ से ढका होता है और ये इस प्रकार से बनाई जाती है कि अंदर से गर्म हो। ये ग्रीनलैंड, कनाडा, अलास्का के इलाकों पे और देश में पाए जाते हैं ये इग्लूज। और ये जो लोग रहते हैं आर्टिक रीजन में इस इग्लू के अंदर, उसे इनुइट कहा जाता है। दे आर कॉल्ड इनुइट। दिस वाज इग्लूज। हम इग्लूज का कुछ पिक्चर्स भी देखेंगे, कुछ तस्वीरें भी देखेंगे, तब आपको समझ में आएगी कि बर्फ़ के घरों में रहना कितना अच्छा लगता होगा। नहीं, ये देखते हैं, ये है इग्लू। दिस इज कॉल्ड द इग्लू। ये आप लोगों ने देखा ही होगा, बच्चे क्लासेस में पढ़े भी होंगे। ये देखिए, ये बर्फ़ से ढका इग्लू। दिस इग्लू इज कम्प्लीटली कवर्ड बाय स्नो। यू कैन सी इट ऑल अराउंड इट स्नो। ये देखिए, इनुइट्स, ये लोग अपने कुछ कुत्ते भी पालते हैं, कुछ जानवर भी पालते हैं। ये लोग अपनी ज़िंदगी इसी बर्फ़ के बीच में बिता देते हैं। दे लिव द लाइफ इन कोल्ड प्लेसेस। सी, दिस इज ऑल्सो द पिक्चर ऑफ इग्लू। ये भी एक इग्लू की तस्वीर है, आप देख सकते हैं ये चित्र। अब नाउ लेट्स कम टू वुडन हाउसेस। अब हम लोग लकड़ियों के घर तक में आते हैं। इन कोल्ड एंड forested region of America, people build wooden houses or log cabins. Wood is used as they are available in plenty and act as wonderful interior humidity and temperature regulator. Wood is a good insulator and helps to keep the house cool in the summer and warm in the winter. ये लकड़ियों का जो घर है, ये जंगली इलाकों में अमरीकी लोग बनाते हैं, जिसे लॉग कैबिन भी कहा जाता है। लकड़ियों की एक खासियत होती है, ये गर्मी में ना ज़्यादा गर्म होता है और ना ठंडा में ज़्यादा ठंडी। ये देखिए, ये लकड़ियों का बना घर काफ़ी अच्छा लग रहा है। आई होप यू माइट लाइकिंग इट टू लिव इन। यू वांटेड बी द ऑनर ऑफ दिस हाउस। इस घर को देख के ऐसा लग रहा होगा कि काश मेरे पास भी ऐसा घर होता। वाओ, ये कितना सुंदर घर है, आप देख सकते हैं। कोई भी चाहेगा ऐसे घरों में रहना, आप भी चाहते होंगे, है ना? एवरीबडी वॉन्ट्स टू लिव इन सच अ ब्यूटिफुल हाउस मेड ऑफ लॉग्स एंड मेड ऑफ वुड। नाउ हाउसेज इन हॉट एंड ड्राई रीजन। अब देखते हैं घर जो गर्म और सूखे इलाकों में स्थानों पे कैसी होती हैं। हाउ द हाउसेज आर इन हॉट एंड ड्राई रीजन। गर्म और सूखे इलाकों पे घर कैसा होता है। मड एंड क्ले हाउस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू से मड एंड क्ले हाउस। मड यानी मिट्टी। मिट्टी का घर कैसा होता है, गर्म की जगह में ऐसे ही बनाए जाते हैं। मड आर यूज्ड विथ मटेरियल सच एज स्ट्रॉ, sticks, etc. to construct the house. People living in hot and dry climate build mud houses. This type of house is found in Mexico. जो गर्मी के जगह में या सूखे इलाकों पे रहते हैं, वो मिट्टियों से बना घर बनाते हैं, जिस पे वो लोग स्ट्रॉ और लकड़ियाँ भी डालते हैं, बाकी सब चीज़ें मिलाकर वो घर बनाते हैं। ये मौसम को देखकर बनाया जाता है। और मैक्सिको के रहने वाले बसिंदे, मैक्सिको के रहने वाले लोग अपने यहाँ मड या क्ले हाउस यानी कि मिट्टी के घर बनाते हैं।
क्योंकि मिट्टी का घर गर्मियों में बहुत ठंड रहता है। ये देखिए, दिस इज अ मड हाउस, क्ले हाउस। यू कैन सी द वॉल्स आर मेड ऑफ क्ले, मड। ये भी देख सकिए मिट्टी का घर, देख सकते हैं ये मिट्टी का घर, क्योंकि मिट्टी का घर गर्म में बहुत ठंडा रखता है घर अंदर से। ये देखिए, ये एक्चुअली इजिप्शियन में पाया जाता है ये मिट्टी का घर। कितनी अच्छे से ये मिट्टी का घर बनाया गया, गेट वेट सभी नज़र आ रहे हैं। ऑल द विंडोज एंड डोर यू कैन सी हियर। दिस हाउस टोटली मेड ऑफ मड एंड क्ले। हाउ वेल फर्निश्ड दिस हाउस इज। These are made up of mud and clay. Now let's come to bricks houses. अब हम लोग ईंटे से बने घर में आते हैं। The Egyptians living in the hot and dry regions of Egypt baked mud bricks. These baked bricks were stronger. The houses of Egypt were probably the first house to be built of bricks. Brick replaces the mud and straw and are made of clay and molded, dried or fired. Nowadays, most of the houses in cities are made of bricks. तो इजिप्शियंस के लोग बहुत गर्म इलाकों में रहते थे, रेगिस्तान इलाकों पे बहुत गर्म होता था, तो उन लोगों ने मिट्टी को छोड़कर और मजबूत चीज़ें यानी कि मड यानी ब्रिक्स यानी ईंटों को उन लोगों ने मिट्टी से ईंटें बनाया, उसे भट्टी में देकर गर्म किया और उसके बाद वो घर बनाने लगे। ये देखिए ब्रिक्स, ये ब्रिक्स का बना हुआ घर है। These houses are made of bricks. It is found in Egyptian. इस तरह के घर आपको इजिप्शियन में पाया जाता है। आप इजिप्शियन में इस प्रकार के घर देख सकते हैं। यहाँ भी देखिए इजिप्शियन में काफ़ी, इजिप्ट में काफ़ी ये घर ब्रिक्स के बने हुए हैं। मोस्ट ऑफ द हाउसेज इन इजिप्ट they are made of bricks. They are stronger also than mud house. ये ब्रिक्स के घर मजबूत होते हैं। Now houses in the hot and wet region. अब हम लोग देखते हैं किस प्रकार का घर बनाया जाता है गर्म और पानी वाले इलाकों में। What type of houses are built in the hot and wet region? जहाँ पर बहुत गर्मी और पानी गिरती है। Huts, जिसे हम लोग झोपड़ी भी कहते हैं, huts. People living in hot and wet climate of Africa used to build huts. They use grass, leaves and vines which are found in plenty in that region. These type of houses are built in villages. Mud wall and straw roof keeps houses cool in summer. तो ये जो हट्स है, ये झोपड़ी जो है, ये क्लाइमेट को देखकर यानी कि मौसम को देखकर बनाया जाता था। इसे बनाने के लिए घास फूस, घास, पत्ते और वाइन्स यानी कि जो वाइन्स होते हैं लंबे लंबे जड़े, उसे भी ग्रेप्स के जो डालियाँ होती हैं उसे वाइन्स कहते हैं, उसे मिलकर बनाया जाता है। अब ये देखिए ये हट्स है, दीज आर कॉल्ड हट्स। ये झोपड़ी आपने देखी होंगी। फिलहाल ये झोपड़ी काफ़ी खूबसूरत झोपड़ी है। मॉडर्न टाइप ऑफ हट्स दीज आर। ये देखिए ये टोटली हट्स आप देख पाएंगे, ये झोपड़ी है। इसके दीवार आप देखिएगा मिट्टी का होगा और इसका छप्पर यानी इसका ऊपर का जो छप्पर है वो स्ट्रॉ और पेड़ और डंटियों से बना हुआ होता है। ये भी एक तरह का हट्स है, पर इसकी दीवारें जो है शायद ब्रिक और ईंटों से बनाई गई है। अंदर में इसकी मिट्टियाँ होती हैं। नाउ अदर टाइप्स ऑफ हाउसेस। अब हम लोग कई अलग अलग तरह के घर देखेंगे। घर कई तरह के होते हैं, तो आप लोगों ने कुछ घर देखा, अब कुछ और तरीके के घर देखते हैं। लेट्स सी द अदर टाइप्स ऑफ हाउसेस। स्टिल्ट हाउस। दिस टाइप ऑफ हाउसेस is mostly found in regions with heavy rain and frequent flood. These houses are raised on stilts, that is legs, over the surfaces of the soil so that house remains protected from the flood water. This type of house is common in part of Southeast Asia एंड वेस्ट अफ्रीका। ये स्टिल्ट घर जो है ये बम्बू के ऊपर बनाया जाता है
इसे ऊंचा किया जाता है ताकि बाहर के जो पानी है घरों में ना धुक पाए। इसे बांस के ऊपर इस घर को बनाया जाता है ताकि ये जमी की सतह से थोड़ी ऊपर रहे और बाहर के पानी अगर भस भी जाए बाहर में। आप देख सकते हैं इस तस्वीरों में कि ये स्टिल्ट के ऊपर, बम्बू के ऊपर ये घर खड़े हैं, जो बाहर का पानी अंदर नहीं जा पाता। सांप, बिच्छू या कोई अन्य जानवर जो पानी में रहते हैं वो अंदर नहीं जा सकते। यू कैन सी द पीपल लिविंग हियर। हाँ, दिस इज द स्टिल्ट हाउस, पीपल living in the stilt, and they are protected from snakes and other water animals. This is called the stilt house. Now let's come to temporary houses. अब हम लोग temporary house में आते हैं। temporary house कैसे बनाया जाता है, किस तरह के होते हैं temporary houses? जो सामान्य आकृति के होते हैं temporary houses. These can be built for vacations and camping. These type of houses are often built by fishermen along the coastal areas using wood or coconut leaves. People nowadays use better material to build modern temporary house. Temporary house वैकेशन के लिए या कैंपिंग के लिए बनाया जाता है, मौज मस्तियों के लिए या शॉर्ट जर्नी के लिए। जब हम लोग कहीं कुछ फासले तय करते हैं थोड़ी देर के लिए, तब हम लोग इस प्रकार के घर बनाते हैं। और ये घर एक स्थान से दूसरे स्थान जाया भी जा सकता है या बदला भी जा सकता है आसानी से। These are different types of temporary houses. You can see temporary houses है ये, आप देख सकते हैं। These are different types of temporary houses. Now tents. सबसे पहले देखते हैं tents क्या है। Tents are used for holiday camping. Modern day tents are made of waterproof material like canvas cloth और nylon. टेंट जो है ये तंबू जिसे हम लोग कहते हैं, जब हम लोग कोई पिकनिक के लिए जाते हैं या जब हम लोग कोई जंगल में फंस गए हैं या किसी काम से जाते हैं या किसी काम के खोज के लिए जाते हैं, तो उस वक्त हमें टेम्प्रोरी घरों की ज़रूरत होती है जो रात भर रहे या फिर सुबह पैकअप करके चले जाए। तो मेक टेंट्स फॉर दिस सिचुएशन। और ये टेंट्स कपड़ों और नायलॉन से बनाया जाता है। इस पिक्चर पे आप देख सकते हैं, इस तस्वीर पे टेंट देखिए, कैनवस और नायलॉन का बना हुआ कपड़ा से ये टेंट्स है। दीज आर कॉल्ड टेंट्स विच आर मेड अप ऑफ, दीज आर टेंट्स। हम लोग देख सकते हैं ये तंबू का बना हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा मन तो कर रहा है मैं अभी जाकर बैठ जाऊं, आप लोगों का भी मन यही करता होगा। फिलहाल वी ऑल लाइक टेंट्स। नाउ टीपी और टेपी और टीपी, what is this? It is conical tent made of animal skin or birch bark and was popular among the Red Indians in America. ये टीपी और टीपी ये जो है ये अमरीकी के रेड इंडियंस अमरीकी इसे यूज़ करते हैं, जो ये जानवरों के खाल से बना होता है। और बर्च बाग, जो बर्च ट्री होते हैं, बर्च पेड़, उसके छाल से या जानवरों के खाल से ये बना होता है टीपी और टीपी। ये काफ़ी इसके स्ट्रॉन्ग, बहुत मजबूत होते हैं इसके खाल। और पहले के ज़माने में ये बहुत ही टेम्प्रोरी, आप देख सकते हैं टीपी, दिस इज़ कॉल्ड द टीपी। इट इज़ मेड ऑफ बर्च बार्क और एनिमल स्किन। ये तंबू जैसा होता है मगर कॉनिकल शेप में होता है। कॉनिकल शेप में ये टीपी को आप देख सकते हैं। आई थिंक एक ही आदमी एक स्थान पे रह सकता है। ये देखिए पुराने ज़माने में ये रेड इंडियंस जो अमेरिका में यूज़ करते थे टीपी को, किस तरीके से टीपी वो लोग इस्तेमाल करते थे अपने घर के रूप में। नाउ कम टू कैरेवन्स। ये बहुत ही रोमांचक और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही लाजवाब वाला ये घर है कैरेवन्स। हाउसेज ऑन व्हील्स इज कॉल्ड कैरेवन्स। Caravans may be pulled by an animal or by car or truck. People move from one place to another and live in caravans. ये कैरेवन जो है एक प्रकार का घर होता है जिसमें चक्के लगे होते हैं और लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं।
ये बंजारे जो होते हैं, जिसका कोई अपना घर नहीं होता, वो एक स्थान से दूसरे स्थान बदलते रहते हैं, बंजारे ऐसे घरों का इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए, ये पुराने ज़माना का ये व्हील्स लगा हुआ है, ये कैरेवन्स जिसमें चक्के लगे हुए हैं। यू कैन सी these caravans were used in olden times by people. You can see this is the picture of old times. ये पुराने ज़माना की एक तस्वीर है। आप देख सकते हैं ये एक यूरोप की तस्वीर है, जहाँ पे कैरेवन जिस पे चक्के लगे हुए हैं और फैमिली उसके अंदर है जो घोड़े तान रहे हैं इस कैरेवन्स को। दिस कैरेवन एंड दिस इज द मॉडर्न डे कैरेवन। ये अभी के ज़माने की, आधुनिक ज़माना की, नए ज़माने की एक कैरेवन से जो बहुत एडवांस चक्के लगे हुए हैं, बस की तरह देखने में है, जहाँ हर फैसिलिटीज़ अंदर में मौजूद है। ये देखिए, आप चाय वाय सब पी सकते हैं, एकदम अपने घर जैसा, सब कुछ अंदर फिर रखा जा सकता है। दीज आर कॉल्ड कैरेवन्स। So different types of people use different types of houses. So I hope all of you like this video on housing and clothing. This was the first part 1 of this chapter. The next part 2 will be released to you all soon. Thanks for watching the video. See you all soon in my next video. I hope ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। धन्यवाद, थैंक यू।